ताजा खबर यह है कि रॉबर्ट वाड्रा को जमानत मिल गई है। 5 लाख के निजी मुचलके पर उनको जमानत दी गई है, लेकिन शर्त यह है कि देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ हैं, जो कि अदालत में भी मौजूद थे। मुकेश, क्या ताजा जानकारी है? देखिए बाबा, जो ईडी जो कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा था, उसे आज कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत दे दी है। ईडी शुरुआत से मांग कर रहा था कि उसको रॉबर्ट वाड्रा की कस्टडी लेनी है और कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने तमाम तथ्यों को देखते हुए रॉबर्ट वाड्रा और उनके जो करीबी हैं मनोज अरोड़ा, दोनों को एंटीसिपेटरी बेल दे दी है। 5 लाख के मुचलके पर ये बेल दी गई है और ये भी एक शर्त लगी है कि रॉबर्ट वाड्रा भारत छोड़कर कहीं विदेश नहीं जा सकते हैं। तो ये शर्त लगी है। ये जो पूरा मामला है, ये मामला ये है कि 2015 में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसने आर्म्स डीलर संजय भंडारी की यहाँ रेड की थी और रेड में उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे, कुछ हार्ड डिस्क मिली थी, जिसमें पाया गया था कि रॉबर्ट वाड्रा के बीच में और संजय भंडारी के बीच में और एक और शख्स है जिसका नाम सुमित चड्ढा है, इनके बीच में कोई बहुत बड़ी खबर दे दी है कि किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा को जमानत मिल गई है 5 लाख के मुचलके पर, उनके सहयोगी को भी। आइए सुनते कि जो वरिष्ठ वकील है क्या कह रहे हैं। A case 9-10 years old to suggest documentary evidence being tampered with is again laughable. Thirdly, a man who has spent 58 hours is fully cooperating. We are very happy, despite the heaps of prejudice sought to be raised by the prosecution, irrelevant things, properties of Mr. A, Mr. B and Mr. C who have nothing whatsoever to do with the accused being brought in to prejudice the learned judge. We are very happy and proud that the legal system has emerged victorious. We'd only like to say that prosecutions actuated, originating and then taken with vigor only for politically malafide reasons, only because you are associated with either politics, is reprehensible, and this government should realize that, which they are conducting across the country. Thank you. Okay. All right. I would like to say this. I would like to say this, that whenever a citizen, an honest citizen, is persecuted, the only hope of a person ultimately is judiciary. And today, judiciary has stood up for the person who was being wronged. You see, this is a case where 2,300 pages of document, 21,000 pages of documents were illegally taken from my office. They had all the documents with regard to my bank accounts. They had all the documents of my property, title deeds and accounts. They had all the documents with regard to the companies which have been floated and through which a perfectly legitimate business was being done. Now, when they find nothing, they ask for custodial interrogation. I just don't understand the logic of this government. On the one hand, you have illegally taken possession of all documents. You find nothing. 58 hours of interrogation, you find nothing. And then you want custodial interrogation only for humiliating and harassing a citizen because of his political affiliations with the family. This is most reprehensible, and I am so glad that the judiciary has risen to the occasion and prevented harassment of an honest citizen. Thank you. Thank you. तो आप सुन रहे थे दो लॉयर जो हैं, वो अभिषेक मनु सिंघवी ने सबसे पहले बताया कि किस तरह से अदालत ने जमानत दी है और उन्होंने कानून का धन्यवाद किया इस पूरे मामले में। तो आप कह सकते हैं कि जो माहौल है देश में इस वक्त, उस वक्त ये फैसला जो है रॉबर्ट वाड्रा के लिए और प्रियंका गांधी के लिए भी सवाल उठाता है। बिल्कुल, आपने कहा कि प्रियंका गांधी के जो चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, उन पर विपक्ष तंज कस रहा था, उनको वो तंज झेलने भी पड़ रहे थे। और फिलहाल जो ये है, कितना फायदा पहुंचाएगा कांग्रेस को, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मुकेश सेंगर हमारे साथ मौजूद है। मुकेश, तो उनके जो करीबी दोस्त थे रॉबर्ट वाड्रा के, मनोज अरोड़ा, उनको भी जमानत मिल गई है,
तो क्या माना जाए जो ये सबूतों की बात कह रहे हैं, सबूत क्या मजबूत जाहिर तौर पर नहीं होंगे तभी जमानत मिली है? देखिए, बिल्कुल रॉबर्ट वाड्रा बार बार ये कहते रहे हैं कि लंदन में जो प्रॉपर्टीज की बात की जा रही है, जो प्रॉपर्टीज कहा जा रहा है कि उनकी हैं, वो प्रॉपर्टीज ना तो उनके नाम है और ना ही वो उन प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। ये बार बार वो कहते रहे हैं और अभी तक ये एस्टेब्लिश नहीं हो सका है कि जो प्रॉपर्टीज लंदन में है क्या वो प्रॉपर्टीज किसकी हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज अलग अलग शेल कंपनियों के जरिए ली गई हैं और बाद में बेची गई हैं। तो अभी ईडी जो है पूरी चेन को एस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। और दूसरी बात, रॉबर्ट वाड्रा खुद एक बार कोर्ट में आ गए थे, उनसे 8 बार पूछताछ हो चुकी है, 8 बार में 58 घंटे पूछताछ हुई है। तो ऐसे में शायद कोर्ट को लगा हुआ कि रॉबर्ट वाड्रा जांच में कोऑपरेट कर रहे हैं, उनके बाहर जाने की संभावना नहीं है और शायद इसी वजह से कोर्ट ने उनको जो है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी है। तो फिलहाल न सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा के लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है। वहीं जो बार बार बीजेपी कह रही थी कि वो रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजेंगे और गिरफ्तार करवाएंगे, उनके लिए जो जरूर एक बड़ा झटका हो गया है, क्योंकि ईडी को झटका लगा है कोर्ट में और कुल मिलाकर ये मामला पॉलिटिकल भी है। तो इसे देखते हुए रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी की राहत की खबर है। ये पूरा जो मामला है ये 2009 से चल रहा था। 2009 में प्रॉपर्टीज दी गई थी कहा जा रहा है और उसके बाद 2015 में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आर्म्स डीलर संजय भंडारी की रेड की थी तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे और कुछ हार्ड डिस्क मिली थी, जिसमें बात सामने आई कि रॉबर्ट वाड्रा ने संजय भंडारी से मेल के जरिए बातचीत की है और एक सुमित चड्ढा नाम का शख्स है जो कि संजय भंडारी का जानकार है, रिश्तेदार है, उससे भी मेल से बात हुई थी, जिसमें कोई लंदन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो रही थी और कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टीज 1.9 पाउंड में खरीदी गई थी। तो कुल मिलाकर उस मनी ट्रेल के जरिए ईडी ने जो है शिकंजा कसा और रॉबर्ट वाड्रा से लंबी पूछताछ की, लेकिन अभी तक ये एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है कि ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं और जो पूरी मनी ट्रेल है वो भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। जी, एक मेरा छोटा सा सवाल है मुकेश, जो कि बार बार केटीएस तुलसी भी हर बार जब ब्रीफ करते हैं तो बोलते हैं कि ये मामला 10 साल पुराना है। तो इस इतने साल से ये मामला चल रहा है, क्या इसमें कुछ है या आपको भी लगता है कि अब किसी और पर्पस के लिए बार बार घसीटा जाता है ये मामला? देखिए, डील जो है 2009 में ये दावा किया जा रहा है ईडी की ओर से कि 2009 में एक पेट्रो डील हुई थी और दूसरी डील जो है डिफेंस डील हुई थी और कहा जा रहा है कि इनके जरिए जो कमीशन आया था उस कमीशन से संजय भंडारी ने रॉबर्ट वाड्रा को प्रॉपर्टियां दी थी, ये कहा जा रहा है। लेकिन ये मामला 2009 का है, लेकिन ये बात सामने तब आई जब 2015 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने संजय भंडारी की रेड की थी। उसके बाद संजय भंडारी देश छोड़कर भाग गया था और उस रेड के दौरान कुछ मेल मिले थे। उन मेल में बात साबित हुई कि रॉबर्ट वाड्रा लंदन में कुछ प्रॉपर्टीज के नवीनीकरण की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज में कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टीज किसकी है ये अब तक साफ नहीं हो सका है। रॉबर्ट वाड्रा बार बार मना करते रहे कि इनकी प्रॉपर्टी नहीं है और ईडी भी अभी तक एस्टेब्लिश नहीं कर पाई कि वो प्रॉपर्टीज किसकी हैं। वो तमाम सेल कंपनियों के जरिए उन प्रॉपर्टीज को लिया गया, बेचा गया, इस तरह से कई बार उनको बेचा गया है। तो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो सका कि किसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ कि वाड्रा के खिलाफ कोई सीधा एविडेंस अभी तक ईडी को शायद नहीं मिल सका है, इसीलिए शायद वाड्रा को कोर्ट ने राहत दे दी है और ये एंटीसिपेटरी बेल दे दी है। लेकिन अभी जो है ये मामला कोर्ट में चलेगा और आगे जो है रेगुलर बेल के लिए भी शायद वो अप्लाई करेंगे। लेकिन एक बड़ी राहत है क्योंकि 8 बार रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो चुकी है और 58 घंटे उससे पूछताछ हुई है। जी।